Okay, so here's the whiteboard. Oh, let me share the whiteboard. Okay, now you can see the whiteboard. Okay, so ladies and gentlemen, today's class and topic is going to be one of the very important topics in the Jyotish Shastra. Whenever you analyze a chart, it becomes very, very important for you to understand few points, few locations of the planets, uh, excluding, not keeping in mind in which rashi they are, in which nakshatra they are. Forget about all these things, just the houses. Okay, just the houses signify lot of things. That every house has a natural significator. Now, what is a significator? Significator means कारका. ओके, इस घर का ये कारक है, उस घर का वो कारक है, राइट? दीज आर द कारकास. नाउ पीपल से व्हाट इज अ कारका, राइट? कारका, from the word karaka, it means the project manager. Okay, I'll repeat this. This is called the project manager. Okay, project manager means that no matter where the planet is sitting, no matter where, still there are certain houses in the Vedic Jyotish where some planets have their influence on it. Okay, I'm gonna make a chart for you. Let me take the black color. Okay, black color. Yeah. Okay. All right. So, okay, this is the chart. Let me tell you. Let me make the kundli and show you the houses. I mean, once I completely explain the entire concept, you people will come to know what exactly I'm trying to tell you. Okay, so now since you are have completed 60 to 70% of you know Jyotish Acharya, right? You people are capable enough to understand the terms that I'm using. When I'm saying sun in the first house, so you know what is the first house and you know what is sun. Okay, so you know all these things. I'm going to write here natural significator. Natural significator in the Jyotish Shastra, is also called Nasargik Karak. Nasargik Karak. Okay, so natural significator is also called as, natural means nasargic, which is automatically, and karak is the significator. Karak, right? कर्म करने वाला. कारक का जो मतलब होता है वो होता है to do something for a particular house. You can call it as a project manager of that house. Does project manager perform himself at a given location? No. Is the project manager doing all the labor job of a particular project? No. But the project manager is responsible and accountable for various things on that project. Okay, it has its energy. Project manager is a manager which is managing the project, right? Which has its influence on a project, which has its energy on that project. Okay, so natural significator, the first house, let me first write down the natural significators in each house. In the first house, the natural significator is the Surya Devata, sun. Remember this. In the Dvitiya Bhava, the natural significator is Jupiter. Yaad rakhna. In the Tritiya Bhava, the natural significator is Mangal, Mars.
In the Tritiya Bhava, the natural significator is Mars. The Chaturtha Bhava, it is Chandra, the moon. The Pancham Bhava is again the Jupiter. The sixth house has two natural significators, which is Mars and Saturn. Just give me a second, please. Okay. I'm sorry that I just got an emergency call in between. Okay, so sixth house is Mars and Saturn as a natural significator. Seventh house, Shukra, Venus. In the fourth house, you can also write Venus. Venus is also a natural significator of fourth as well as the seventh. Eighth Bhava, Shani. Navam Bhava, Brahaspati again. 10th house has four natural significator grahas. Sun, Mercury, Jupiter, and Saturn. 11th house is Jupiter again. And Dwadash Bhava is the Shani. Okay. So these are the natural significators. नैसर्गिक कारक याद रखना आपको जीवन में होल लाइफ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब इनका यूज क्या है, इनका फायदा क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, कहां से आया ये कॉन्सेप्ट कि ये नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं. देखिए, जब भी हम प्रथम भाव की बात करते हैं, whenever we talk about the first house, what is coming to your mind? You know, the thing which is coming to your mind. Now remember this, I'm not talking about the Lagna Lord. Okay? मैं लगन के लॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लगन की, फर्स्ट हाउस की. लगन लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस, not the first house itself. Okay? First house is your sharira, is what you are actually. People say, Guruji, Lagna is intelligence. Isn't the intelligence part of your body? Because brain is in your body. Your intelligence is in your body.
and 99.99% your body is controlled by your brain. If the brain doesn't work, what happens? You are paralytic. आपको पैरालाइज हो जाता है, आपकी बॉडी जाम हो जाती है, रुक जाती है। और शरीर को इम्यूनिटी देने वाला सभी ग्रहों का राजा सूर्य देवता है। सूर्य says that look, I am there, मेरी वजह से एग्जिस्टेंस है। और ये बात सही भी है। पूरी धरती और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, उनकी एग्जिस्टेंस के कारक सूर्य देवता हैं, क्योंकि उन ग्रहों की एनर्जी हमारे पास आ कहां से रही है? इन द फॉर्म ऑफ सन रेज, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। या तो उनकी एनर्जी सूर्य दे रहा है या चंद्र दे रहा है। दिन में सूर्य काम करता है, रात को चंद्र काम करता है। अगर शनि देवता शाम के समय आप तक एनर्जी पहुंचाते हैं, तो वो मैग्नेटिक फोर्स जो आपके और चंद्र के बीच में है, उसी मैग्नेटिक फोर्स से शनि की सारी एनर्जी आप तक पहुंचती है। पिता आपको जीवन देता है, माता आपको पालती है, सूर्य और चंद्र। आपके सोल को स्पार्क देने में, your soul is like a spark, it's like a very thin spark. That spark is coming from the Surya Devata. Now Surya Devata is the king of all the planets, and Surya Devata is right in the middle. So if you have a kingdom, if you have a palace, if you have all ministers and soldiers and diplomats, where would the Raja want to sit? Raja want to sit on the top, right in the middle. If you see Mahabharata, if you see Ramayana, where was Raja Ram sitting? Right in the middle, in the top, so that he can look at all the things. He can influence all the things. So this is where the Surya Devata is a natural significator of the first house. So my question is, what is the application of this natural signification? The application of the natural signification is, if somebody says that, oh, my health doesn't remain good, I am not physically very well, something or the other thing keeps happening to me, my confidence level is very low, my son is a very introvert person, my government things doesn't work, my law, and I have problems with government every other day. What are you going to see? You are going to see two things. One, you are going to look at the first house, right? Because these things, the confidence, immunity, government, authority, this is all Surya Devata, right? This energy is there in the first house. You become authoritative because of your lagna. Your lagna is strong, you will be more immune. Your lagna is strong, you know what will happen? You will be authoritative and very, very fit. You'll be extremely fit person, right? If your lagna is strong, your immunity will be very high. Okay, so people say, oh, Guruji, my immunity is very low. Every third day I have cold and cough. What house to look at? First house. Because आपकी इम्यूनिटी का नेचुरल सिग्निफिकेटर प्रथम भाव है। आप छठा भाव नहीं देखेंगे। छठा भाव बीमारियों का है, मैं मानता हूं, लेकिन प्रथम भाव भी उसको देखेंगे। People say, oh Guruji, I am not getting job and my Saturn dasha is going on. शनि इज अ कर्म स्थान और कर्म का कारक है। जैसे बृहस्पति धर्म का है, शनि कर्म का है। लोग क्या करते हैं,
लोग 10वां भाव 10th हाउस देखते हैं, इसको 10th हाउस में क्या ऐसा ग्रह बैठा है, क्या ऐसा गोचर हो रहा है, क्या ऐसा ट्रांजिट हो रहा है जिसकी वजह से इसको नौकरी नहीं मिल रहा। अरे दे शुड लुक एट द 6th हाउस, 8th हाउस एंड 10th हाउस एंड 12th हाउस। व्हाई? बिकॉज शनि इन सभी घरों का नेचुरल सिग्निफिकेटर है। दशम भाव के अलावा अगर 12वें भाव में, छठे भाव में और अष्टम भाव में कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आपको व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में दिक्कत आएगी। अगर आपकी गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम है, आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, आपकी सेहत, इम्यूनिटी, अथॉरिटी, राजा, आप लीडरशिप क्वालिटीज की कमी है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि फर्स्ट हाउस के ऊपर से कोई ऐसे ग्रह तो नहीं गोचर कर रहे जो कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो। मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पर, अगर प्रथम भाव में किसी की कुंडली में यहाँ पर सैटर्न बैठे हो, कोई भी राशि हो, ओके, कोई भी राशि हो प्रथम भाव में, और यहाँ पर शनि बैठे हो, और मान लो तुला राशि है प्रथम भाव में 7 नंबर, और यहाँ पे शनि बैठे, क्या होगा बोलो? So भूल that जाओ। person, अब यहाँ that पे 2 मिनट के लिए ये भूल जाओ, ऐसा लिखा नहीं होता कुंडली में कि सूर्य यहाँ पे नेचुरल सिग्निफिकेटर है, ठीक है? यहाँ पे लिखा होगा 7 नंबर और शनि यहाँ बैठे होंगे, क्या होगा बोलो? बहुत मेहनती होगा। अच्छा, तो स्ट्रगल ज्यादा। वाई? so it's not a good placement for Saturn, I guess, ये मरण कारक स्थान है because शनि। sun का वो केंद्र में अच्छा नहीं होता सर। उस पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होगा। 7 में डेबिलेट हो जाते हैं सन। नहीं, एक्सॉल्ट होता है। उच्च के हो जाते हैं 7 नंबर में। सर पहले फर्स्ट हाउस में शनि का मरण कारक स्थान है जी तो बंदा स्लो हो जाएगा शायद सर, जी। from intellect, I guess. और सर फिजिकल अपीयरेंस बहुत डिप्रेसिव होगा। अच्छा, फिजिकल अपीयरेंस डिप्रेसिव किसका होता है? सैटर्न बहुत टफ लुकिंग लगते हैं एकदम। सर चंद्र का होना चाहिए आई गेस। देखो यहाँ पर मैंने अपने ज्योतिष एक्सपीरियंस में जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर देखी है, शनि का प्रथम भाव में अगर उच्च के होके बैठ गए, उच्च का, तुला का शनि उच्च होता है, एक्सॉल्टेड होता है, राइट? जब भी शनि यहाँ पर आके बैठे हैं, आप not necessarily always, but 90%, and 90% is a huge percentage, not less. 90% is, trust me, huge percentage, right? Either if the Shani is exalted or if the Shani is debilitated. चाहे शनि exalted हो, चाहे 7 नंबर में हो, चाहे 1 नंबर में। You know, I have seen this as the kundli of autistic children, handicapped people. आपको लगन को स्लो कौन बनाता है, दिमाग को स्लो कौन बनाता है? या तो आप ऑटिस्टिक हो या आपके हाथ पांव नहीं चलते हैं। आई हैव सीन ब्लाइंड पीपल, ऑटिस्टिक पीपल, हैंडीकैप पीपल, you know, people who do not have early success in their life. They struggled, and especially with these two rashis, okay, not any other rashi, these two rashis only, 1 and 7. या शनि उच्च का हो गया तो भी बहुत काम खराब हो गया, नीच का हो गया तो भी काम खराब हो गया। हाँ, और मित्र राशियां हैं 6 नंबर, 7 नंबर। अब विराट कोहली का भी यहाँ पर है, लेकिन विराट कोहली का जो लग्नेश है वो बहुत स्ट्रांग है। अब हमें ये भी देखना होगा कि यहाँ पर मंगल और शनि की क्या पोजीशन है, मंगल और शुक्र की क्या पोजीशन है, क्योंकि ऑटिस्टिक होने के लिए यहाँ पर मंगल जो कि इस घर का मालिक है और शुक्र इस घर का जो मालिक है, उनका भी बहुत खराब अवस्था में बैठा होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सैटर्न
इन दी प्रथम भाव, ओके, मैं मरण कारण स्थान लिख रहा हूं, MKS, मरण कारण स्थान। वाई सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस लिख रहा हूं 1H, फर्स्ट हाउस 1H, शनि का मरण कारण स्थान है। सैटर्न डाइज हियर, व्हाई? शनि क्या है? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, वो जो लेबर क्लास पतला सा एक बंदा जिसके मुंह में बीड़ी है और वो झाड़ू लगा रहा है, हाँ, उसके नीले या काले रंग के कपड़े डाले रहेंगे 99%, आइदर ब्लू और ब्लैक, राइट? वो इंसान शनि है। और अगर आप उसको राजा के तख्त पे बिठा दो, विल ही सिट कॉन्फिडेंटली देयर? आपके घर में कोई लेबर क्लास वाला आता है, आप उसको सोफे पे बिठाते हैं क्या? अगर आप उसको सोफा ऑफर भी करेंगे ना, तो भी वो नीचे बैठ जाए, स्टिल ही विल सिट डाउन, और ही विल फाइंड अ चेयर, कोई लकड़ी की चेयर मिल जाए, कोई डाइनिंग टेबल की चेयर मिल जाए, उस पे अनकंफर्टेबल बैठेगा। अगर घर पे किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन को बताते हैं, तो वो सोफे की सबसे बढ़िया जगह लेगा घर पे आके, विल सिट देयर, लात के ऊपर लात रख। दैट इज सूर्य। आप किसी को बुलाते हैं जो सैटर्न है, काम वाली बाई आई, उसको बोलो आओ बैठो सोफे पे, हाउ विल शी सिट? आधी करके आगे से बैठेगी, जैसे उसको लगेगा कि वो सोफे पे पूरी ना बैठे। नहीं, isn't that? समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या करना चाह रहा हूँ? यस सर। अब जैसे Yes, sir. जैसी चेयर पे मिसेस पुरी बैठी हैं, नीलिमा जी बैठी हैं, वैसी चेयर पे अगर लेबर को बिठाओ तो बैठेगी, और मैं नहीं बैठूंगा, वो साइड पे बैठेंगे। दे विल नेवर सिट इन अथॉरिटेटिव चेयर, नो, नेवर। प्रथम भाव में अथॉरिटी है, शनि वैसे ही घबरा जाता है। और प्रथम भाव में शनि को काम करना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। अब ऐसे इंसान को आप बोलो दिमाग चलाओ, लेबर क्लास को वो बोलो हमसे काम करवा लो, हार्डवर्क करवा लो, 15 घंटे झाड़ू करवा लो, पोछा करवा लो, लेकिन आप बोलो कि सरकार चलाए तो कैसे चलेगा? आप बोलो कि ज्योतिष पढ़ा दे, हम नहीं पढ़ा सकते। दे विल वर्क 12 आवर्स, 8 से 8 की ड्यूटी होती जमादार की, 8 से 8 की ड्यूटी होती लेबर क्लास की। They'll keep standing, they're very thin, they are usually black or little, whitish in color. They will have pan supari bidi in their pocket, they will eat very minimum, and they are very lean. That is pure Saturn, वो pure, वहां से आपको शनि की प्रॉपर एनर्जी फील होगी, वो है शनि। उनकी मदद करने से शनि उच्च हो जाते हैं। उनके साथ कभी बार्गेन नहीं करना। वो बोले मैं फ्लश साफ करने का 250 रुपया लेंगे, आपकी नाली बंद हो गई खोलने का, हम 500 रुपया लेंगे, उसको 550 से दो। आपको पता है वो 250 रुपये ज्यादा ले रहा है। लीवाइस वाले 1500 की टी शर्ट 6000 में बेचते हैं ना, फिर भी लेते हो। नॉटिका की जीन्स लेने जाते हो, 4000 की जीन्स उनको कॉस्ट थोड़ा करती है, वो तो 1500 की जीन्स कॉस्ट करती है, वो 5000 में बेचते हैं, आप फिर भी कहते हो आई एम वेयरिंग नॉटिका, हाँ, यूएस पोलो की सिंपल इवनिंग टी शर्ट कॉलर वाली 4000 से शुरू होती है, 500 में मिलती लुधियाना में, यहाँ पे सेम फिटिंग के साथ। जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उनको देते हैं उतने, वो सिर्फ अपना टैग लगा के उसमें नाइकी एडिडास जोड़ के वो कितने की बेचते हैं, यू अंडरस्टैंड? सो आप उनको कितना पे करते हो? लेबर क्लास के साथ कभी जिंदगी में सब्जी वाला, दूध वाला, ये लेबर साफ सफाई करने वाला, रिक्शा वाला, रिक्शा पुलर्स, राइट, ऑटो वाला, नेवर बार्गेन। they are asking you two times, 3 times, give them. You are settling your karma with Shani. Can you bargain at Levi's or US Polo? Any branded showroom you name, they will say okay, 40% off.
10,000 का शर्ट है, आपको हम 6,000 में देंगे। आप बोलो नहीं ना, आप 2500 में दे दो। सर प्लीज सर, आप पागल हो गए, बात जाइए, आप क्या बात करो। दिस इज अ कंपनी आउटलेट, वी हैव इंस्ट्रक्शन दिस मच ओनली। अब वो सैटन के पास कंपनी आउटलेट है नहीं, वो तो बेचारा खुद ही कंपनी है। उसको दबा के लोग लेबर के जो यहाँ पे काम करते कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनके 2-4 हजार रख के सोचते हैं हमने बहुत कुछ बचाया। उस 2-4 हजार का 20-30 लाख रुपया वापस करना पड़ता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो घर पे कोई ट्रेजेडी हो। जस्ट कीप गिविंग देम मनी wherever you see such people, just उनको पैसा लौटाते रहो, देते रहो। खाना दे दिया, रोटी दे दी, चाय दे दी, पैसा दे दिया, देते रहो देते रहो देते रहो। आपका घर कभी खाली नहीं होगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा आपके घर। हिम्मत करके, थोड़ा हौसला करके, थोड़ा टाइम देके देखो, यू विल सी द रिजल्ट। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ गारंटी। और आपको मालूम है, शनि सप्तम भाव में उच्च के नहीं होते हैं। सप्तम भाव, सप्तम राशि में या प्रथम राशि में एक पर्टिकुलर नक्षत्र में उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं। पूरी की पूरी 7 नंबर में शनि उच्च के नहीं होते हैं। 7 नंबर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। 3 नक्षत्र आते हैं चित्रा, 7 नंबर राशि में लिब्रा में 3 नक्षत्र आते हैं। कौन से? चित्रा 30 डिग्री का होता है ना, 30 डिग्री का होता है ना, तो Yes, 30 sir. डिग्री में चित्रा आता है। उसके बाद विशाखा, एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, विशाखा। तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक रहता है। हाँ, और यहाँ पर तुला में पहली 2 पदाएं 6 डिग्री 40 मिनट्स तक, 0 से 30 डिग्री पूरा जो ज़ोडिएक रहता है, 0 से 30 डिग्री। 640 डिग्री तक चित्रा रहता है, 606 डिग्री एंड 40 मिनट्स तक। 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक, 20 डिग्री तक विशाखा रहता है। ओके, राइट। कितनी पदाएं होगी? 4 और 1 5। ओके, उसके बाद आगे की जो 3 पदाएं हैं, टोटल 8 पदाएं होती है एक नक्षत्र में, तो एक राशि में। तो बाकी की जो 3 पदाएं हैं वो कौन से नक्षत्र की हैं मालूम है आपको? यहाँ पे विशाखा नहीं होता है, सो सॉरी, स्वाति होता है। चित्रा के बाद यहाँ पे स्वाति, यहाँ पे स्वाति रहता है। और स्वाति के बाद यहाँ पर जो बाकी 3 हैं वो विशाखा है। ये नक्षत्रों के नाम हैं, ठीक है। इसमें 20 डिग्री पे जब शनि 20 डिग्री का हो तुला के अंदर, तो वो उच्च का होता है, एग्जॉल्ट होता है। Okay. ओके, 20 डिग्री पे। तो मोटा मोटा अगर यहाँ पर ये तुला लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ नक्षत्र कितने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने 7 में स्टार्ट करवाए। ये पूरा का पूरा ज़ोडिएक डिग्री कितना होगा? 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। यस, मैक्सिमम इतना ही डिग्री होता है। इसके 20 डिग्री पे, इस पॉइंट पे जब 20 डिग्री होगा, अगर शनि 20 डिग्री का है, यहाँ पे शनि की डिग्री लिखी हुई है 20 डिग्री, तो शनि उच्च का है 7 नंबर में, अदरवाइज शनि उच्च का नहीं है। अच्छा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी। This is where the importance is. This is where the importance of nakshatra comes in the picture.
Okay, so usually say, people say, okay, Shani is exalted at 21 degree. Yeah, that's fine. 21 degree is the exaltation degree of Shani. 20 से 21 degree. I hope you're trying to understand what I'm trying to tell you. This is very important, ladies and gentlemen. Very important. अब आप कहेंगे, लोगों के साथ क्या होगा, कहां पर ज्योतिष गलती करता है? यहां पे करता है ज्योतिष गलती. कैसे? अगर 7 नंबर में किसी का शनि है, भाग्य स्थान में बैठा है, ठीक है, ओके, और शनि की डिग्री है 14 डिग्री, 14 डिग्री का शनि है. क्या शनि उच्च का है? नो, शनि इज नॉट एक्सॉल्टेड. नो, जब तक आपको शनि के नक्षत्र का पता नहीं होगा कि, और अच्छा मान लो इसका उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, क्यों? उसमें आपको ज्यादा बढ़िया पता लगेगा. अब शनि की एक नीच की डिग्री भी है. शनि शुड बी डिब्लिएटेड ऑल्सो, है ना? तो अगर एक पर्टिकुलर डिग्री में, एक पर्टिकुलर डिग्री में शनि नीच का होता है, एक पर्टिकुलर राशि में, एक पर्टिकुलर नक्षत्र में, शनि नीच का होता है, और उस राशि में जो शनि है एग्जैक्टली ऑपोजिट 20 डिग्री, 20 डिग्री में एक नंबर राशि में नीच का होता है. 20 डिग्री पे तुला में एग्जैक्टली ऑपोजिट उच्च का हुआ था, एग्जैक्टली ऑपोजिट 20 डिग्री मेष में शनि नीच का हो जाता है. राइट? तो अश्विनी की कितनी पदाएं होंगी नक्षत्र की? 3, 0 से 13 डिग्री तक, 13 डिग्री 20 मिनट तक. फिर उसके बाद आगे 3 पदाएं किसकी होंगी? भरनी की. भरनी की होती है ना? यस. राइट? तो भरनी की जो डिग्री है वो 20 डिग्री के बीच में आएगी, तीसरी पदा. तो शनि भरनी नक्षत्र में ही नीच का होता है, और शनि स्वाति नक्षत्र के लास्ट चरण में, चौथे चरण में उच्च का होता है. अब आपका मान लो शनि यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र में है, कहने को लोग कहेंगे ओहो आपका तो शनि नीच का हो गया जी. तो क्या शनि नीच का है? नो, इट इज नॉट. शनि को जब तक नक्षत्रों के बेस पे आपने देखा नहीं, आप किसी भी ग्रह की एक्सॉल्टेशन और डिब्लिएटेशन का पता नहीं लगा सकते. अगर आपको शनि पता हो एग्जैक्टली कि किस डिग्री में है, तो ही आप एक्सॉल्टेशन और डिब्लिएटेशन का पता लगा सकते हैं. That is why nakshatras are so important. That is why I was telling you guys, I'm starting, the time has come, because now जब आप नक्षत्र की क्लास लगाएंगे, उसके बाद ज्योतिष आचार्य 7 की क्लास लगाएंगे, आपको ज्योतिष आचार्य 7 एग्जैक्ट, ज्योतिष आचार्य 6 का जो आपका बैच है, आपको एग्जैक्टली समझ में आने लगेगा कि मैं क्या करवा रहा हूँ. Why a planet is getting debilitated, why a planet is getting exalted, what is wrong, right? आप लोग कहते हैं ओ नवनीत चित्कारा, आपका ना चंद्रमा जो है 8वीं राशि में है. ये वो मंदिर में जो पंडित जी बैठे होते हैं वो कहते हैं चंद्रमा अष्टम आ गया, अरे बाप रे इसका तो सत्यानाश हो गया, इस बच्चे का तो शनि जो है वो चंद्रमा खराब हो गया, इसका तो दिमाग खराब रहेगा, इसका चंद्र ही नीच है. अरे चंद्रमा अनुराधा में नीच का? अनुराधा मेरा नक्षत्र है. हाँ, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 20 डिग्री स्कॉर्पियो में अनुराधा नक्षत्र है, वहां पर तो चंद्रमा नीच हो ही नहीं सकते. चंद्रमा 3 डिग्री पे नीच होते हैं. विशाखा की लास्ट पदा में जैसे ही अनुराधा शुरू होता है उसमें चंद्रमा नीच के होते ही नहीं, और मेरा चंद्रमा दूसरी पदा में है, अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 डिग्री के बीच में है चंद्रमा, पदा 2.
ऑफ अनुराधा, वहां पर चंद्रमा नीच के है ही नहीं, वहां पर चंद्रमा सुपर्ब है, और उसकी एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूं. डू यू थिंक माई माइंड इज वीक? डू यू थिंक आई एम इंसोम्निया? डू यू थिंक आई एम अनस्टेबल पर्सन? नो. और वो प्रिंसिपल लोगों को लगता है, अरे इसका तो चंद्रमा नीच है और ये बंदा तो सही है, यहाँ पे तो ज्योतिष गलत हो गया. नहीं, ज्योतिष के अंदर आपने नक्षत्र नहीं देखे, नक्षत्रों के अंदर आपने पदाएं नहीं देखी, चरण नहीं देखे, कौन से चरण में क्या है, फिर आप लिटिल नॉलेज के कारण कह रहे हो इनका तो चंद्रमा नीच है, इनकी लाइफ खराब होगी, इनका तो शनि नीच है, इनका शनि उच्च है. गलत एक्सपेक्टेशन. आप कह रहे हो आपका शनि जो है ना वो उच्च का बैठा है. शनि बैठा है चित्रा के अंदर. कहाँ बैठा है? 4 डिग्री का शनि है. चित्रा किसका नक्षत्र है? मंगल का. मंगल का नक्षत्र है. आपने क्या किया? आपने बंदे को नीलम डलवा दिया. चित्रा नक्षत्र के अंदर शनि, सिर्फ ये देख के कि शनि तुला में था, 7 नंबर राशि में था, बेड़ा गर्क कर दिया उस बंदे का, सत्यानाश कर दिया उस बंदे का, बर्बाद कर दिया आपने उसको. यू ruined his life. आपको सिर्फ यही नॉलेज थी कि शनि तुला में उच्च का होता है. आपको ये नॉलेज नहीं थी कि शनि एक पर्टिकुलर नक्षत्र और नक्षत्र का भी कोई स्वामी है. जिस पदा में वो बैठा है उस पदा का भी एक स्वामी है, उस पदा का भी एक स्वामी. हर एक पदा का एक ग्रह स्वामी होता है. एवरी पदा हैज अ लॉर्ड, एवरी चरण हैज अ लॉर्ड, एवरी होरा, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, every hour has a lord. I'm talking to you, this minute also has a nakshatra, a graha lord. It has influence on whatever I'm saying. If you can calculate that, you will have 100% accurate ज्योतिष. आप किसी की सच में मदद कर पाएंगे. अदरवाइज तो people will stop believing in ज्योतिष पांडे जिस तरह से चल रहा है सब कुछ. So this is like शनि का मरण कारण स्थान. Guys, शनि says कि मैं 12वें भाव का नेचुरल सिग्निफिकेटर हूं. वाह, बहुत बढ़िया. 12वां भाव का नेचुरल सिग्निफिकेटर किसी ने सोचा क्यों है शनि? बारहवां भाव क्या है? मोक्ष. मोक्ष है. अब मोक्ष, लिबरेशन, नुकसान, खर्चा, व्यय का एक्सपेंडिचर. मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको क्या खर्चना पड़ता है? सर टाइम, साधना करनी पड़ती है. कर्मा. कर्मा. क्या खर्चना पड़ता है मोक्ष प्राप्ति के लिए? खर्चने का मतलब क्या है? स्पेंड करना. आपके पास 500 रुपया था, आपने 500 रुपया किसी को दे दिया, उसके बदले कोई चीज ले ली. What did you do? You lose 500 rupees. Yes or no? Yes. To attain moksha, जो सबसे पहली चीज आपको खर्चनी पड़ती है, this what you have to spend is your body. You first die. आप अपने शरीर को 5 तत्वों में मिलाते हैं, उसके बाद मोक्ष मिलता है. शरीर के साथ मोक्ष किसको मिला आज तक? हाँ. कर्मा, this, that, keep it with you. Eat minimum, eat sattvic, eat less. That is the first step to moksha. जो मिल गया खा लिया, जब मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो भी अच्छा है, मिल गया तो और भी अच्छा है. That is why I started Sattvic movement yesterday. Just give me a second, please.
अपने आप को खत्म करना पड़ता है मोक्ष लेने के लिए। शनि कहता है कि मैं सांस हूं आपकी, आपके जो श्वास है ना, आपके जो प्राण हैं वो मेरे पास है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ने कहा नवनीत चितकारा विल डाई इन सो एंड सो टाइम, इन सो एंड सो डेट। उसका रिकॉर्ड किसके पास है? उसका रिकॉर्ड मेरी सांसों के पास है। भागे भागे शनि देवता आते हैं, बोले अच्छा इतने साल, अच्छा भोले बाबा इसके जरा श्वास काउंट कर लेते हैं। वो कैलकुलेट कैलकुलेट करके अच्छा इतने लाख, इतने हजार, इतने श्वास से, ओके डन, साइन कर दो। भोले बाबा ने साइन किया, आपकी मृत्यु फिक्स हो गई। अब शनि श्वास के रूप में आपके शरीर के अंदर आ गया और कहता है उस दिन लात मार के निकलूंगा आपके शरीर से जिस दिन सांस खत्म, जिस दिन आपकी मृत्यु आनी है, उस दिन आपका लास्ट ब्रेथ यू विल टेक। और वो जो लास्ट ब्रेथ है वो शनि है, 12वां घर, आपकी किस्मत खत्म। और वहां पर शनि कहता है आपके श्वास खत्म हुए, अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो दोबारा मरो इस धरती पे जाके, दुख तकलीफ रो कर लाओ, रिश्ते तोड़ो, रिश्ते बनाओ, जोड़ो, प्यार डालो, फिर धोखा खाओ, पैसे की प्रॉब्लम, सेहत की प्रॉब्लम, दिस दैट, मरो, जाओ धरती पे, go to hell again because you still have pending karma, or you can take moksha. I will see the debit and credit of your good karma. Oh, it is 0-0. Congratulations. Send him to Vishnu ji. विष्णु जी के राइट एंड लेफ्ट पे इंद्र देवता बैठे, बोला इंद्रा दिस इज अ न्यू गाय मोक्षा, गिव हिम ड्यूटी इन दी स्वर्ग। तो बोलो आपकी स्वर्ग में जितने फूल है ना, बस उनको रोज सुबह उठ के देखना है, घूमना है कि सब जो बागवानी है वो अच्छी हो रही है, जो कहोगे कि ये खाना है तथास्तु आपके सामने होगा। कोई मृत्यु कभी किसी की नहीं होगी, ना माँ मरेंगी, ना बाप मरेंगे, ना पिता, ना कोई मरेगा नहीं, कोई बच्चा। सारी जिंदगी हजारों करोड़ों साल आप जियोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हर दिन नई नई नॉलेज लोगे, ऋषि मुनियों को मिलोगे, शक्तियां प्राप्त करोगे, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स मोक्ष। और आपको बताऊं ये सब चीजों की चाह भी नहीं होगी जब मोक्ष मिल जाएगा, यू जस्ट किक देम ऑफ। ये सारी चाह जो है वो धरती पे ही है। यू विल बी लिबरेटेड। यहाँ पे एक सुकून की शांत भरी जिंदगी, ना भूख लगेगी ना प्यास, ना मृग तृष्णा होगी ना तृष्णा होगी, ना स्वार्थ होगा ना जलन होगी, ना मोहब्बत होगी ना नफरत होगी, कुछ भी नहीं होगा। दैट्स मोक्ष। शनि सेज, शनि विल मेक द बैलेंस शीट, शनि विल डिसाइड, शनि विल आइदर सेंड यू टू यमराज फॉर रीबर्थ, चित्रगुप्त के पास, or he will send you to Vishnu ji for moksha, because he has the account of your karma. He says I will become the natural significator, the 12th house. Now what if you have sun here, किसी की कुंडली में 12वें भाव में सूर्य आके बैठ जाए, क्या होगा? ये सूर्य का मरण कारण स्थान है। सन डाइज इन द 12th हाउस बिकॉज सन बिलीव करता है इम्यूनिटी जीवन देने में, शनि बिलीव करता है आपकी हत्या करने में। शनि ने सांस रोकनी है और सूर्य ने आपको सांस देनी है। वन इज द नॉर्थ पोल, द अदर इज द साउथ पोल। सूर्य की वजह से आपको आत्मा, स्पार्क, जीवन, इम्यूनिटी, पिता मिल रहे हैं, और शनि की वजह से आपको मृत्यु मिल रही है, आपकी सांसें रुक रही हैं। और राहु और केतु शनि के चेले हैं, वो शनि के आजू बाजू घूमते हैं। क्यों? क्योंकि राहु शनि की वायु को कैरी करता है, बिकॉज कैरिंग द एयर, दैट इज व्हाई राहु इज अ एयर एलिमेंट, वायु तत्व। केतु क्या है? वो आपके पिछले जन्म के सारे अकाउंट्स का अपने पास रखता है। राहु फ्यूचर के बारे में सोचता है। राहु कहता है जो मैं करना चाहता हूं
केतु है जो मैंने अकम्प्लिश कर लिया है, और शनि आपका प्रेजेंट है। तो ये तीनों एनर्जीज एक साथ रहती हैं हमेशा, शनि, राहु, केतु। और शनि और केतु अगर किसी की कुंडली में बैठ जाए तो आपका प्रेजेंट आपके पास्ट पे आधारित होता है, और पास्ट में केवल श्राप ही श्राप हैं। इसीलिए शनि केतु के युति को श्रापित दोष कहा जाता है। आप समझ रहे हैं कहां पर गेम चल रही है? सब आपके अपने कर्म हैं, और बेचारे शनि बदनाम है। ना उसका आपके साथ कोई लेना ना देना, उसको केवल कार्य मिला है। और ये कार्य क्यों मिला शनि को, ये नक्षत्रों में पढ़ाता हूं मैं, कि क्यों बने शनि श्वास, क्यों मृत्यु और लॉन्जिविटी के कारक बने। पुत्र हैं सूर्य देवता के, और सूर्य देवता से 1 मिनट नहीं बनती है। काहे? अग्नि, अग्नि के भाई हैं ये, सगे भाई हैं अग्नि के। इमेजिन, ये सूर्य का मरण कारण स्थान है। सूर्य dies in the 12th house. If you have Surya in the 12th house, very strong chances of low in immunity, your government things, absence of father, your father will die, or 99% father doesn't die, 99% आपके जीवन में पिता का सुख नहीं होता है, पिता अब्रॉड होते हैं, या पिता आपसे इतना प्यार नहीं करते, या पिता आपके पास टाइम नहीं दे पाते, या वो जल्दी चले जाते। जब सुख की, जब एक सात्विकता की, एक आशीर्वाद की जरूरत होती है जीवन में, तब पिता नहीं रहते, फादर गोज अवे। सी, बिकॉज यहां पर शनि नहीं है, लेकिन शनि की शक्ति है इस घर में। इस घर का प्रोजेक्ट मैनेजर शनि है। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है किसी भी कुंडली के अंदर। इट्स नॉट देयर, it's not there, but still it is present. The energy is present. It is not making Surya comfortable there. क्योंकि 12वें भाव की एनर्जी शनि की वजह से मिली, 12वें भाव को, 12th हाउस को। ओ गुरुजी, मेरा पैसा जो है ना वो आता है और फिर सारा खर्च हो जाता है, सारा चला जाता है। जैसे ही पैसा आता है नया खर्चा सामने खड़ा होता है। कभी स्कूल यूनिफॉर्म लेनी, स्कूल खुल गए, सेमेस्टर की फीस देनी है, कभी अस्पताल जाना पड़ गया, कभी भाई ने मांग लिए, कभी कपड़े ज्यादा ले लिए, कभी बर्थडे आ गए 3-4, कभी कुछ, सब खत्म, फिनिश। लोग कहते हो अच्छा आपकी शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा खर्चा करवाते हैं। इट्स अ नॉनसेंस ज्योतिष, इट्स अ नॉनसेंस ज्योतिष। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज स्टूपिड, ज्योतिष इज नॉट स्टूपिड। People are doing astrology, people are not doing jyotish. I'm sorry, people are not doing jyotish. पैसा नहीं रुकता है, घर में बरकत नहीं पड़ती है। आपकी कुंडली में आपको एकादश भाव, 11th हाउस और द्वितीय भाव को चेक करना है, क्योंकि नेचुरली वेल्थ के स्वामी बृहस्पति हैं। सिग्निफिकेटर, when बृहस्पति is bad in the कुंडली, जितना मर्जी पैसा कमा लो उसमें सुख और प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर। सुख नहीं होगा, पैसा होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, जेलसी, नफरत। बृहस्पति देवता प्रॉस्पेरिटी देते हैं। प्रॉस्पेरिटी होती है आज्ञाकारी संतान से, आज्ञाकारी पति और आज्ञाकारी पत्नी से। Without, you will never get a deceptive life partner if your Brihaspati is good. You will get a loyal life partner.
Now say, oh Guruji, my Brahaspati sitting in the 9th house, I am the Mesh Lagna. It is a beautiful position. Don't say me all these nonsense things, okay? I would like to see the nakshatra. I would like to see the position of Brahaspati in the Varga charts, in the divisional charts. Then you say, you people ask me, Guruji, what is the meaning of Saturn and Jupiter sitting in the 9th house? I have this conjunction. How do I know? I don't know which nakshatra, which charana. I don't know what is the nakshatra in the Navamsha chart. I don't know what is there in the D10 chart. Or the student is not studying. You know, he's not getting admission in post-graduation. I have to go and see the D24 chart, whether he's getting the admission in the post-graduation or not. When you ask this question on WhatsApp group, I seriously don't know what to reply. Do you think I can reply? And I'm not replying. You see? That is where the problem is. That is where the problem is. I can reply, but I seriously don't know because I don't have the complete knowledge. And when you will reach my stage, you will say, यार ये कैसा क्वेश्चन पूछते हैं? ये वो क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब झोला छाप दे सकते हैं. ये वो क्वेश्चन पूछते हैं who will take 500 rupees as a consultation fee, and they will never go to nakshatras, they will never go to vargas, they will never go to transits, they will not touch anything. They will just look at the position of the planets in the first chart and the rashi and the graha. That's it. वो जो बस स्टैंड पे 50 रुपए की किताब मिलती है, इस राशि में ये ग्रह ये करता है. That's it. How funny. Just like, you know, you have a fever. Okay, you take a Combiflame or a you know, what do you call it? I don't know. Paracetamol. You'll be fine. Will you be fine? Ask yourself. Until and unless you don't know the root cause of the problem. That's where the problem is. No? So Jupiter is a natural significator of your assets, your रिश्तेदारी, expansion. Expansion कैसे होती है? जब खानदान बढ़ता है. वो जो पराक्रम रहता है, what is a पराक्रम? पराक्रम is ability to do something. उसके लिए ताकत चाहिए, हौसला चाहिए, जिगरा चाहिए. बिजनेस खोलना है, अपने आप को दिखाना है कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है. उसका कारक मंगल है. और पराक्रम शुरू होता है कम्युनिकेशन से. कम्युनिकेशन केवल वर्बल नहीं होती है. कम्युनिकेशन इज नेवर वर्बल. कम्युनिकेशन इज बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो. कम्युनिकेशन आत्माओं की भी होती है. कम्युनिकेशन शरीर की भी होती है, जुबान की भी होती है, नजरों की भी होती है, स्पिरिचुअलिटी की भी होती है. गुरु और शिष्य में कम्युनिकेशन होती है विदाउट वर्ड्स, दुआओं की, ब्लेसिंग्स की. उस कम्युनिकेशन में बल देने वाला ग्रह मंगल है. मंगल कहता है कि मैं नेचुरल सिग्निफिकेटर हूं तीसरे भाव का, पराक्रम दिखाऊंगा. अगर आपको लगता है कि इसमें पराक्रम की कमी है तो आप क्या देखोगे? तीसरा भाव डिस्ट्रॉयड तो नहीं है, मंगल डिस्ट्रॉयड तो नहीं है. सारा दिन घर बैठे रहना, कोई काम ना करना, खाना बना दो, परांठा बना दो, राजमा चावल दे दो, शाम को मैगी दे दो, चाय दे दो, पकौड़े ले आए, खाना खाया, गली में घूमे, सो गए, होल डे फिनिश. जीरो पराक्रम. गेनिंग वेट, नॉट टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी. आज शाम को नहाए हैं तो अगले दिन शाम को या परसों सुबह दोबारा नहाएंगे, होल डे नॉट टेकिंग केयर. They are thinking that they are going to a ration place, to a grocery store, and they are getting a ration. Is their job done? You know, तो सबसे बड़ा काम था दिन में जो हमने किया है. How foolish. When you can get the delivery at home,
You know, why to go and waste your time? Read Jyotish. Do your work. Don't waste your time. My wife says, Navneet, go and get some vegetables. I say, are you mad? What is wrong with you? तब तक तो मैं ज्योतिष के 4 कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा, आलू प्याज लेने भेजेगी, दिमाग खराब है। वो घर पे डिलीवर होते हैं, पे 50 रुपीज एक्स्ट्रा। What is wrong with you? I just said her, are you mad? She never came to me again. She never came to me because उसके बाद अगर वो मेरे पास आती तो मैं आलू प्याज खाना ही छोड़ देता। बोले मैं खाना छोड़ूंगा, बनाएगी किसके लिए? पड़ोसियों के लिए। फिनिश। प्रभुपाद जी से पूछ लिया किसी ने, यू वांट मी और टी? किसने पूछा? वाइफ ने पूछा उनकी। She said, Prabhupada, what do you want? You want me or you want tea? He said, I want tea. Get out. I am writing Bhagavad Gita. बहुत 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 ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और पत्नियों को समझना चाहिए कि उसके एक वीर के साथ विवाह हुआ है, उसको समझना चाहिए। राजा राम जी की पत्नी समझती थी राजा राम जी को। जितने फौजी भाई अपनी जान दे देते हैं, नौछावर कर देते हैं, वो जाते हुए एक ही बात कहते हैं कि जब वापस आऊं तिरंगे में लिपटा हुआ तो रोना नहीं मेरे को देखकर। You should be mentally prepared. Anything can happen anytime. Don't cry. If you are ready, then marry me. If you're not ready, you have 100 people to marry. Just choose anyone else. पराक्रम मंगल के हाथ में है। तीसरे भाव का मंगल, अगर मंगल मान लो तीसरे भाव में ही बैठा हो तो आप सोच सकते हैं कितना पराक्रम बना देगा इंसान, कितना पराक्रम बना देगा। क्या पराक्रमी होगा वो इंसान, कुछ भी कर लेगा मंगल तीसरे भाव का इंसान, क्योंकि पराक्रम उसके अंदर कूट कूट कर भरा होगा। रोम रोम में पराक्रम होगा उसकी। और अगर कहीं मंगल लग्नेश हो, लगन का स्वामी हो, और वो तीसरे भाव में बैठ जाए, वन मैन आर्मी, नो, वन मैन आर्मी। देखा है ऐसा मंगल, लगन का मंगल तीसरे भाव में? सर आपका है ना? हाँ, लग्नेश है मंगल और तीसरे भाव में नेचुरल सिग्निफिकेटर वहां जाकर बैठ गया। पराक्रम, बल, विल पावर, इच्छा शक्ति को निरंतर करना और जीवन में आगे बढ़ना, वो है मंगल तीसरे भाव। वाणी को खराब कर देता है, वाणी में क्रूरता ला देता है, पराक्रम ला देता है। You become very, very strong with the words. Mars in the 3rd house. Very strong, strict. Because वहां से मंगल की दृष्टि कहां पर पड़ती है? नवम भाव पे, स्पिरिचुअलिटी पे, सप्तम दृष्टि। आपके रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में भी पराक्रम लाता है ऐसा मंगल। इंसान ज्योतिष पढ़ाएगा बिना डरे, बड़े बड़े पंडितों के मुंह पे बोलेगा, पोंगा पंडित, झोला छाप, ये वो, उसको बोलेंगे तुम, हमको हम लोग मैसेज करते हैं, वो बोलते हैं नवनीत जी थोड़ी सी इज्जत रखो, आप हमें यूट्यूब पे मुंह पे बोल रहे झोला छाप झोला छाप। मैं कहा आप हो नहीं क्या? आप काहे लोगों को पागल बनाते हैं? Why? When you don't know something, why are you giving a remedy? You go to a medical shop, you don't know what is this medicine all about. Will you pick up and give it to your customer because you have the stock for it? आपने 10 पुखराज खरीद लिए, 15 नीलम खरीद लिए, 12 मूंगे खरीद लिए और आप कलकत्ता में दुकान बना के बैठ गए ज्योतिष की। जब तक 10 मूंगे बिकेंगे नहीं, जब तक 15 पुखराज बिकेंगे नहीं, तब तक अगला स्टॉक कैसे आएगा? जो आ रहा है उसको मूंगा डलवा रहे, पुखराज डलवा रहे, नीलम डलवा। वाई? मार्केट में ट्रेंड आता है, मार्केट में
श्रीलंका से 1500 पीस आ गए नीलम के, सारे ज्योतिषी उस एरिया के सबको नीलम डलवा रहे हैं, जैसे दुकानदारी लगी हुई है। किसी का सिंह लगन है, शनि अति मारक है, उसको भी नीलम डलवा रहे। अरे शनि को बलवान करेंगे तभी तो सूर्य कुछ करेंगे। सूर्य चांटा मारते हैं ऐसे इंसान के मुंह पे। एंड देन यू स्टॉप बिलीविंग इन ज्योतिष। दैट इज द ट्रेजेडी, दैट इज द ट्रेजेडी, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। We don't know what to do, we're still doing it. Oh, my house is not happening, मेरा घर नहीं बन रहा है, मेरा घर बन ही नहीं रहा प्रभु जी। Go and see the condition of the 4th house. Go and see the position of Venus and Moon. It will tell you कि चतुर्थ भाव के ये नेचुरल सिग्निफिकेटर है। क्यों? चतुर्थ भाव क्या है? माँ है। आपका पहला घर कौन था? Which was your first house? मदर्स वूम। Mother's womb. जब आपकी फॉर्मेशन हुई, आप क्या थे? आप अपने पिता का स्पर्म थे। That is was the Surya in the first house. You and I, everyone was sperm of your father. Because we are in Kali Yuga. We will get birth. We will not appear. In Satyuga, people used to appear. They never used to take birth. They used to appear non-biologically. Appearance. आप संत महात्मा के लिए वर्ड क्या यूज करते हो? Appearance. For you and me, the word is used, you were born. When you say born, is biological. So if you are born biological, you are sperm of your father. Respect your father, maybe if he's wrong or right. I lost my father in 2015 to a cardiac arrest. I understand what is a father. जैसा मर्जी है वो, इज्जत करो। और आपका पहला घर आपके माँ की कोख थी, 4th house. 4th house is your mother's womb. No, that's your mother's womb. और दूसरा, मदर वूम के बाद आपका घर, आपका ये घर है। इसीलिए चतुर्थ भाव, वाहन। आपका पहला वाहन कौन था? मदर्स वूम। जहां जहां मम्मी जाती थी वहां वहां बच्चा जाता था। नो, यू यूज्ड टू ट्रेवल इन व्हाट? मदर्स वूम। घर पे आए तो गाड़ी मिली, घर मिला, छत मिला। इसीलिए वाहन का और सुख का, प्रोटेक्शन का जो नेचुरल भाव है वो चतुर्थ भाव है। और वीनस क्या है? स्पर्म। चंद्रमा क्या है? माँ। जल, कोख के अंदर जल होता है। घर में पानी ना आए तो क्या होता है? कितनी जल्दी जल्दी आप फोन करते हो अपनी सोसाइटी वालों को, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, हमने नहाना है, हमने वॉशरूम जाना है। दिस इज नॉट चंद्र, सुख। जितने भी लोग पहले, जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई हैं, सिविलाइजेशंस को जब बसाया जाता था, उसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होती थी? जल के आसपास, वाटर। हड़प्पा सिविलाइजेशन, आर्यन सिविलाइजेशन, ये कहां पर बसे हैं? मोहिंजोदारो, ये कहां पर बसे हैं? हमेशा पानी और रिवर के पास। जल, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट इज कमिंग फ्रॉम जल। Chandra naturally signifies the 4th house. Brahaspati naturally signifies the 5th house. Children, मंत्र, 5वां घर बच्चों का नहीं है, पर 5वां घर बच्चों के साथ साथ आपकी एजुकेशन का भी है। जो ग्रेजुएशन करते हो ना आप, वो 5th हाउस है। पोस्ट ग्रेजुएशन 9th हाउस है। इसीलिए 5th और 9th के दोनों के कारक गुरु हैं। 5th house is graduation. Your post graduation, PhD, everything is 9th house. Higher education, professional education, doctorate is 9th house. 12वीं से लेके 16 क्लास तक, 15 क्लास तक जो पढ़ाई है वो पंचम भाव के पास है। 16 से ऊपर जो पढ़ाई है वो नवम भाव के पास है। और गुरुजी, ग्रेजुएशन में बहुत सप्ली आ रहा है, बहुत कंपार्टमेंट आ रहा है। Look at the 5th house. Look at Jupiter. Oh, I am not getting admission in PhD. Look at the 9th house. Look at the planet which is transiting over the 9th house.
see in the Navamsha, see in the Dashamsha, see in D24, see in D60. You'll get your answer. You understand? अभी आज हम यहां पर रोकेंगे क्योंकि मुझे एक एक घर की सिग्निफिकेंस के ऊपर आपके साथ लंबा बात करनी है. I want to discuss signification of the 7th house for half an hour, 8th house for half an hour, 9th house I have half an hour detail with me. So अभी इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ 15 मिनट में, पर मेरी आत्मा नहीं मानती है. I want to do natural signification and मरण कारण स्थान in 2 to 3 lectures. I don't care अगर ज्योतिषाचार्य में आपके 50 लेक्चर भी हो जाएंगे, आपको आना चाहिए. I don't care. I don't want to give you 27. I've never given 27 lectures. If I promised 27, at least I've given 35, 40 minimum. That's my nature. And if I promise 40, I've given 60 lectures. Minimum. I mean, extra is whatever you can take. Are you understanding what is natural significations, ladies and gentlemen? Yes or no? जी गुरुजी. Yes, sir. Yes. Kanchan ji, you're understanding it. जी गुरुजी, अभी थोड़ा क्लियर हो गया कि why sun is there, why moon is there also, you know. Yeah. That's a big difference after today's class. Yeah.